وہ جی میں نے مسکان کے رشتے کی بات کی تھی اپنے دوست سے، تو وہ لوگ گھر آنا چاہ رہے ہیں۔ کب آئیں گے وہ لوگ؟ بس آج کل میں آ جائیں گے۔ آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ ابھی تو بس آ رہے ہیں، تم اتنی فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ جیسے ہی میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے مسکان کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر تو ہوتی ہے نا رفیق صاحب، آپ مجھے پہلے بتاتے، میں گھر میں کچھ انتظامات کر کے رکھتی۔ رشتہ ہونا ہوگا تو ویسے بھی ہو جائے گا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں لڑکا کرتا کیا ہے؟ گھر میں کون کون ہے؟ 2 بھائی اور 1 بہن ہے، BA کیا ہوا ہے اس نے۔ وہی لڑکا جو ہے دبئی میں جاب کرتا ہے۔ سب شادی شدہ ہیں، یہ سب سے چھوٹا ہے۔ تو کیا ہماری مسکان شادی کر کے دبئی چلی جائے گی؟ تم کہاں اتنی دور کی سوچ رہی ہو؟ ابھی انہیں آنے تو دو۔ کیا کروں رفیق صاحب، ہاں ماں ہونا، بچی کو خود سے دور کرنے کا سوچ کے ہی دل کام جاتا ہے، تو یہ تو پھر ملک سے باہر چلی جائے گی۔ خیر سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ مسکان کے لیے کچھ جوڑ کے رکھا ہے؟ ہاں کافی کچھ ہے، ہاں یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ جوڑ رکھا ہے کافی کچھ میں نے۔ چلیں آپ کو میری محنت نظر تو آئی؟ تم نے تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ ویسے آپ نے زندگی میں پہلی بار میری تعریف کی ہے۔ عورت اگر سمجھدار ہو نا تو مرد کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، جیسے میری ہو گئی۔ بھئی ہمارا نواسا کہاں ہے؟ وہ اپنی خالہ کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ مجھے آج اسے باہر لے جانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ یقین کریں سارا دن مسکان اس کے ساتھ کھیل کے ہی گزار دیتی ہے، اور وہ بھی ایک لمحہ اس کے بغیر نہیں گزارتا۔ بڑا پیارا بچہ ہے، بلاؤ نا اس کو یار۔ یہ تم کیا ہے شرارتیں کرتے رہتے ہو؟ خالہ کی شادی ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ اور تم کیا اب خالہ کے ساتھ چپکے رہتے ہو؟ خالہ تو چلی جائیں گی آپ کو چھوڑ کر۔ اوئے کیوں؟ ایک کام کرتے ہیں زافیار، خالہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ امی ناراض ہے مجھ سے؟ تمہیں نہیں پتا؟ امی میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو آپ اس طرح مجھ سے ناراض ہیں؟ تمہاری وجہ سے میں اور تمہارا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی سے نہیں ملتی، اور تمہاری وجہ سے ایمان اس سب سے گزری ہے، اور جو کچھ تم نے ایمان کے ساتھ کیا نا اس کے لیے نہ میں تمہیں کبھی معاف کروں گی اور نہ میرا اللہ۔ امی میں نے شادی کی ہے، آفرین ہے، اور شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، آفرین ہے تمہاری اس گھٹیا سوچ پہ۔ اور میں نے کون سا ایمان کو طلاق دے دی ہے؟ اگر وہ آنا چاہتی ہے میری زندگی میں، اس گھر میں، تو آ سکتی ہے وہ۔ کس قسم کے آدمی ہو تم اور کس قسم کے باپ ہو تم؟ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اس لڑکی نے کون سا جادو کیا ہے تم پہ؟ امی میں آپ سے یہی بات تو کرنے آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے لے آئے نا اسے اس گھر۔ آپ پلیز مجھے زاویار سے ملوا دیں۔ میں کس منہ سے جاؤں گی اب اس گھر میں؟ تم نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے
किन अरमानों से मैं ईमान को इस घर में लाई थी, क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने इस घर के लिए। ड्रामा सीरियल वाट्सएप मेरी बहुएं की आने वाली किस्तों में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। तीनों भाई जो अब तक अपनी अपनी गलतियों और गलत फहमियों में गुम थे, आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम पर वापस आ रहे हैं जहां उन्हें अपने वालिदैन की कदर और घर की अहमियत का एहसास होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आलमीर रोहन की। बिल्कुल अपने दोनों भाइयों की तरह वो भी एक ऐसी सूरत-हाल से गुजरने वाला है जो उसे उसकी हकीकत दुखा देगी। आलमीर का ससुर अचानक उसके आउटलेट पर पहुंचता है और आकर सख्त लहजे में उसके कारोबार के बारे में सवाल करता है। जब आलमीर कहता है कि काम आज कल कुछ थोड़ा स्लो है, तो इसका ससुर तंजिया अंदाज में जवाब देता है, अगर तुमसे ये सब मैनेज नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मैं तुम्हें भी बैठाकर खुला सकता हूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। ये जुमला आलमीर के लिए एक शदीद ताना साबित होता है, एक मर्द की गैरत पर सईदावार। इसीलिए अमकन यही है कि आलमीर अब ये आउटलेट छोड़कर वापस अपने घर लौट आएगा, जहां उसके माँ बाप उसकी राह देख रहे हैं। दूसरी तरफ शाहविरिड का रवैया दिन बदन खराब होता जा रहा है। अपने वालिदैन की फिक्र तो उसे जर्रा बराबर भी नहीं, मगर अपनी सास के लिए इतनी फिक्रमंद है कि उसे अस्पताल ले जाने, टेस्ट करवाने और बार बार ख्याल रखने के वादे करता नजर आएगा। ये सब देख कर यूं लगता है कि उनके घर में हालात अब किसी बड़े सानहे की तरफ बढ़ रहे हैं, और सबसे ज्यादा अमकान उनकी हौरमा की मौत का दिखाया जा रहा है, जो घर को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख देगी। इधर सुराहीम और मुस्कानौस की मोहब्बत भी एक नए इम्तिहान में दाखिल होने वाली है। ईमान ने मुस्कान से कह दिया था कि अगर राहीम सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे चाहिए कि बाकायदा और रिश्ता भेजे। इसी मशूरे पर अमल करते हुए राहीम घर वालों से अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा। मगर उस कहानी का सबसे बड़ा मसला है वाज़मेक आस, जो अब भी राहीम और मिस्कान की मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। आने वाली किस्त में वो साफ लफ्जों में कहेगी, मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से कभी नहीं होने दूंगी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यूं लग रहा है कि कहानी अब एक बहुत दिलचस्प और शिद्दत से भरपूर मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां हर किरदार अपनी गलतियों, जज्बात और रिश्तों की कीमत चुकेगा। आलमीर की जिंदगी में जो तूफान आने वाला है, उसके आसार बहुत वाज़ेह दिखाए जा रहे हैं। जब इसका ससुर उसके आउटलेट पर आता है तो आलमीर के अंदाज में एक घबराहट और कमजोरी साफ नजर आती है। वो खुद समझता है कि काम उसके हाथ से निकल रहा है, मगर फिर भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उसके ससुर के जुमले उसकी हिम्मत तोड़ देते हैं। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो छोड़ दो, मैं तुम्हें भी बैठाकर खुला सकता हूँ। ये जुमला आलमीर को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी है। मर्द के लिए ये बात सुनना कि वो बीवी के घर का महताज बनकर जी रहा है, एक ऐसा जख्म है जो अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। यही वजह है कि आलमीर अब पहली बार सोचेगा कि वो किस तरफ जा रहा है, और शायद इसी झुके हुए सर के साथ अपने वालिदैन के घर वापस आने का फैसला करे। दूसरी तरफ शाहवीर की कहानी एक मुख्तलिफ इंतहा पर पहुंचने वाली है। वो अपनी बेहसी और खुदगर्दी में इतना आगे बढ़ गया है कि अपने माँ बाप के जज्बात को मुकम्मल तौर पर भूल चुका है। घर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बहनें परेशान हैं, वद्दीन टूट रहे हैं। मगर इस सब के मुकाबले में शाहवीर अपनी सास की बीमारी के लिए इतना फिक्रमंद है कि आलमीर के लिए उसका ससुर सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि ऐसा शख्स है जो हर बात में उसे ये एहसास दिलाता है कि वो अपनी बेटी के लायक नहीं। जब वो आउटलेट पर आकर आलमीर से पूछता है कि कारोबार कैसा चल रहा है, तो आलमीर एक लम्हे को रख जाता है। उसकी आवाज में लर्जिश होती है, चेहरे पर शिकस्तापन छलकता है। वो सिर्फ हालात छिपाने की कोशिश करता है, मगर हकीकत ये है कि औकाम वाकई हाथ से निकल रहा है। ससुर का सख्त लहजा और ताने भरे जुमले उसके इत्माद को चुकनाचूर कर देते हैं। मैं तुम्हें भी बैठाकर खुला सकता हूँ। ये कलमात आलमीर के कानों में बार बार गूंजते रहते हैं, जैसे हर धड़कन इसी जुमले को दोहरा रही हो। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि उसकी मर्दांगी, गैरत और खुददारी पर कारीवार है। इसी लम्हे आलमीर के दिल में एक फैसला जन्म लेता है कि शायद अब वापस उस घर लौटने का वक्त आ गया है जिसे छोड़ कर वो खुद को कामयाब समझ बैठा था। शायद अब वो अपने वालिदैन के कदमों में बैठकर
अपने जख्मों का मुरहम ढूंढेगा। शाहवीर की सूरताल तो और भी अजीब है। वो इस हद तक बदल चुका है कि उसे अपने माँ बाप की तकलीफ, घर की बगड़ती दीवारें और बहनों के आंसू तक दिखाई नहीं देते। उसे बस अपनी सास की तकलीफ नजर आ रही है। घर वाले जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बेरखी से टाल देता है, लेकिन सास हल्का सा खांसती है तो वो फौरन गाड़ी की चाबी उठाकर कहता है, चलें अम्मी, मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ, आपके टेस्ट भी करवाता हूँ, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये जुमले सुनकर घर के अफराद एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दुख और बेबसी के मिले जले तासरात के साथ। इन्हें साफ महसूस होता है कि शाहवीर इनसे बहुत दौड़ चला गया है, इतना कि शायद अब वो लौटे भी तो बहुत देर हो चुकी हो। और ऐसे ही हालात में उमूमन एक बड़ा सदमा घर के दिल पर वार करता है। यही वजह है कि सब इशारे इसी तरफ जा रहे हैं कि उनकी माँ की मौत उस कहानी का सबसे बड़ा धचका साबित होगी जो हर किरदार को हिलाकर रख देगा, खुसूसन शाहवीर को, जो शायद पहली बार सोचेगा कि मोहब्बत सिर्फ बीवी के रिश्ते की नहीं होती, वह दीन की भी होती है। इधर मोहब्बत के मुहाज पर राहीम और मिस्कान की कहानी एक ने बहरान में दाखिल हो चुकी है। मिस्कान का दिल तो राहीम के लिए धड़कता है, मगर ईमान ने उसे एक नई आजमाइश में डाल दिया है। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो उसे कहो रिश्ता भेजे। ये बात राहीम के ज़हन में बजली की तरह गरती है। वो कई रातें इसी सोच में जागता रहता है कि क्या वो वाकई इतनी हिम्मत रखता है, क्या वो अपने घर वालों के सामने खड़ा हो सकता है। आखिरकार एक दिन वो हिम्मत करके बैठक में वालिद से अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। उसके चेहरे पर दबाव, आंखों में खौफ और आवाज में लर्जिश होती है, लेकिन उसके अल्फाज मजबूत होते हैं। अब्बा, मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूँ। ये जुमला घर के माहौल को सुनाटे में डबो देता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे कोई गलती हो गई हो, मगर असल तूफान तो अगले लम्हे आता है जब महक दरवाजे में खड़ी सब कुछ सुन लेती है। महक के अंदर पहले ही से मुस्कान के लिए नफरत भरी है। उसे हमेशा से लगता था कि मुस्कान उसके मकाम, उसकी अहमियत और उसके असर रसूख को चिलिंग करती है। अब जब राहीम ने रिश्ता भेजने की बात की तो महक की आंखों में आग भर जाती है। वो गुस्से और तकबर से लरजती हुई आवाज में कहती है, मैं तुम्हें उस लड़की के साथ खुश नहीं देख सकती और ना ही तुम्हारी शादी उससे होने दूंगी। उसका रवैया, आलमीर जब ससर के जुमले सुनता है तो सिर्फ उसकी आंखें नहीं झुकती बल्कि उसका दिल भी अंदर से टूट जाता है। वो आउटलेट के काउंटर के पीछे खड़ा होता है, लेकिन उसे लगता है जैसे उसके कदमों के नीचे की जमीन ही निकल गई हो। ससर जब तंजिया अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें भी बुठाकर खुला सकता हूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, तो आलमीर के जहन में फौरन अपनी माँ का चेहरा आ जाता है। वो माँ जो कभी उसे थोड़ा सा भी परेशान देखती तो उसका सिर सहला कर कहती थी, बिट मैं होना। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, मगर वो वहां कमजोरी नहीं दिखा सकता। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी दुद और गलत फैसलों की वजह से खुद को ऐसे मकाम पर पहुंचा दिया है कि आज उसे ये लफ्ज सुनने पड़ रहे हैं। और पहली बार उसे लगता है कि शायद घर से निकलकर बीवी के घर रहकर खुद को खुद मुख्तार समझकर उसने अपनी असल पहचान खो दी है। दिल में भारी बोझ लिए जब वो आउटलेट बंद करता है तो उसके कदम खुद ब खुद घर की तरफ उठते हैं। घर जहां उसके वालिदैन शायद आज भी उसे गले लगाने को तैयार होंगे, मगर इस वापसी का रास्ता उसके लिए अना और शर्मिंदगी की जंग बन चुका है। शाहवीर का वालिदैन से दौर होना और आने वाला सदमा। शाहवीर की कहानी तो एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया दारी में इतना खो गया है कि उसे असल रिश्ते भूल चुके हैं। अपनी बीवी और सास के चक्कर में वह वालिदैन के साथ ऐसा सलूक कर रहा है जैसे वो गैर हों। जब घर में अम्मी बीमार होती हैं, वो महज एक नज़र देखकर कहता है, अम्मी आप लोग हर बात में ड्रामा बना देते हैं। लेकिन इसी लम्हे फ़ोन पर सास हल्की सी तबीयत खराब होने का बताती है तो शाहवीर के लहजे में मोहब्बत, फ़क्र और जल्दी भरी होती है। वो ठंडी सांस लेकर कहता है, आमी जान आप फिक्र न करें, मैं आ रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। घर वाले उसके ये रवैये देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। बाप सिर झुकाकर बैठ जाता है जैसे पूरी दुनिया ने उसे छीन लिया हो। बहनें आपस में खामोश नजरों से बात करती हैं, वो नजरों की जबान जो दिख से बोझल हो। ऐसे ही माहौल में अक्सर ड्रामों में वो लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। और यहाँ भी शायद
माँ की मौत वो धचका साबित होगी जो इस घर को हमेशा के लिए बदल देगी। माँ की मौत के बाद शाहवीर की जिंदगी में वो खला पैदा होगा जिसे कोई भर नहीं सकता। तब उसे पहली बार एहसास होगा कि वद्दीन का साया न रहे तो इंसान कितनी बड़ी महरूमी में डूब जाता है। अमलोस राहिम और मुस्कान इम्तिहान की मोहब्बत रुआ। राहिम जब मुस्कान के लिए रिश्ता भेजने का फैसला करता है तो वो लम्हा उसके लिए ताकत और खौफ दोनों का है। वो जानता है कि घर में कई लोग इस बात के खिलाफ होंगे, खास तौर पर महक। वो ये भी जानता है कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन मुस्कान की बात, ईमान की नसीहत और अपने दिल का सुकून उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो वालिद के सामने बैठकर जुमले अदा करता है मगर उसके हाथ कान पर रहे होते हैं। बाप पहले हैरान होता है, फिर खामोश, और फिर अपने गहरे अंदाज में कहता है, यौवन सोच लिया है। राहिम आहिस्ता से सर हिलाता है। ये मंजर इतना भरपूर है कि महसूस होता है जैसे हवा भी रख गई हो। मॉर्स महक का गुस्सा नफरत की आग जो सबको जला देगी। महक उस घर की वो शख्सियत है जिसका दिल सद, तकबर और हसद से भरा हुआ है। मुस्कान के जिक्र से ही उसका चेहरा बदल जाता है। जब वो राहिम को ये कहते सनती है कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता है तो उसकी सांसें तेज हो जाती हैं गुस्से से। आलमिर जब रात को घर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो उसके हर कदम के साथ एक याद जुड़ी होती है। रास्ते में चलते हुए उसे माँ के वो लफ्ज याद आते हैं जो उसने जाते वक्त कहे थे, बेट अपनी इना के पीछे अपने घर को मत छोड़ना, रिश्ते इंसान को दोबारा नहीं मिलते। इस वक्त वो हंस कर निकल आया था मगर आज वो हंसी उसके अपने दिल पर जख्म बनकर लौट रही है। घर के दरवाजे तक पहुंचते ही उसके कदम रख जाते हैं। वो दरवाजे को देखता है, वो दरवाज़ा जो कभी उसके लिए हर वक्त खुला होता था मगर उसने अपनी जद की वजह से उसे छोड़ दिया। इस लम्हे में आलमिर के दिल में सिर्फ एक ही बात गूंजती है, क्या मैं वापस आकर इन सब के काबिल हूं? लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं रहा। जब वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता है तो अंदर से हल्की सी रोशनी आती है। बाप सोहन में चारपाई पर बैठे तस्बीह पढ़ रहा होता है। आलमिर को देखकर पहले चौंकता है, फिर आहिस्ता से कहता है, आ गए बेटा। इस जुमले में नाराज़ी नहीं, शकवा नहीं, सर्फ व बाप की वो नरमी होती है जो औलाद के लिए कभी ख़त्म नहीं होती। आलमिर के आंसू रख नहीं पाते। वो बाप के कदमों में बैठ जाता है मगर बाप उसे उठाकर गले लगा लेता है। ये मंजर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त भी है और सबसे बड़ी जीत भी। शाहवीर मोहब्बत का अंधापन और ज़मीर की नींदो। शाहवीर अब इस हद तक बदल चुका है कि उसके दिल में वालदेन के लिए नर्म गोशा भी बाकी नहीं रहा। उसे लगता है कि माँ बाप की बातें सिर्फ इल्ज़ाम, पाबंदी और नाराज़ी हैं, जबकि सास की बातें उसे मोहब्बत, अहमियत और तौजा महसूस करवाती हैं। उसे अंदाज़ा ही नहीं कि उसकी इस बेतौजही ने घर वालों के दिल में कितनी तकलीफ भर दी है। ख़ास तौर पर माँ के दिल में जो हर रात सोते हुए उस बेटे के लिए दुआ करती है जिसने उसे भला दिया है। माँ की तबीयत खराब है मगर घर वाले उसे बताना भी छोड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो फिर सास के पास भाग जाएगा। एक रात जब माँ की सांसें तेज हो जाती हैं, घर में भाग दौड़ मचती है, सब उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करते हैं मगर शाहवीर को कॉल करने के बावजूद वो मसरूफियत का बहाना बनाकर फ़ोन काट देता है। सी रात वो सांसों के आखिरी धागे से लटकी माँ बेटे का नाम लेते हुए दुनिया छोड़ देती है। अगले दिन जब शाहवीर घर पहुंचता है तो उसे एहसास नहीं होता कि घर का सुकूत क्यों इतना भारी है। बाप की आंखें सोची हुई हैं, बहनों ने रो रो कर चेहरे जर्द कर लिए हैं और फिर उसे बताया जाता है कि आखिर शाहवीर तुम्हारी उम्मीद नहीं रहे। ये जुमला उसके वजूद को हिलाकर रख देता है। इस लम्हे उसे एहसास होता है कि वो जिस रिश्ते के लिए सब छोड़ बैठा था उसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता खो दिया। राहीम मोहब्बत की जुरात और ख़ानदान की आजमाइश है। राहीम अपनी जगह खड़ा है मगर घर का माहौल उसके खिलाफ हो चुका है। बाप खामोश है, भाई उलझन में हैं, बहुएं मजाक बना रही हैं, लेकिन उसके दिल में एक ही बात है, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इसके लिए खड़े होना पड़ता है। वो जानता है कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन उसके जज्बात किसी खौफ के आगे झुकने वाले नहीं। वो रात भर जाग कर सोचता है कि कैसे वो मुस्कान का हाथ थाम कर उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। उसे यह एहसास भी है कि अगर वो आज पीछे हट गया तो शायद हमेशा खुसारे में रहेगा। उसी लिए वो घर में होने
वली हर मुखालफत के बावजूद अपना फैसला नहीं बदलता। आलमीर घर में कदम रख तो लेता है, मगर उसके दिल में एक नाकाबिल बयान खौफ बैठा हुआ है। वो सामने बैठे अपने वालिद को देखता है, वही वालिद जो कभी उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा करते थे, बेट, इंसान की असल ताकत उसकी मेहनत होती है, न कि ससुराल का सहारा। आज इन्हीं अल्फाज की तलखी आलमीर के दिल में तीर की तरह चुभ रही है। बाप की आंखों में आंसू नहीं होते, मगर उनकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर देती है। वो खामोशी जो वालिद की टूटी उम्मीदों, गहरे दुख और फिर भी औलाद के लिए बेपनाह मोहब्बत से भरी होती है। आलमीर पहली बार खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। वो आहिस्ता से कहता है, अबा, गलती हो गई थी, मैं वापस आ गया हूँ। बाप उसकी बात सुनता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, गलती इंसान से होती है बेटा, लेकिन घर वही ठीक होता है जहां अपने मौजूद हूं। ये जुमला आलमीर के अंदर ठंडी हवा की तरह उतरता है। उसे लगता है जैसे वो सालों बाद अपने हिसार से बाहर आया हो। इस रात वो फिर इसी कमरे में सोता है जहां उसने बचपन में अपनी माँ के साथ सोते हुए ख्वाब देखे थे, लेकिन अब ख्वाब नहीं, सिर्फ हकीकतें हैं जिन्होंने उसे मजबूत भी करना है और तड़पा भी देना है। बार दरअसल शाहवीर, माँ की जदाई का कर्ब और जमीर का मातमूम। शाहवीर जब माँ की मौत की खबर सुनता है तो इस लम्हे की गूंज उसके पूरे वजूद में बजली बनकर गिरती है। दुनिया जैसे थम जाती है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके दिल से सांस खींच ली हो। वो माँ के चेहरे के पास बैठता है जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। वो हाथ पकड़ता है जिसने बचपन में 1000 बार उसे थपथपा कर सलाया था, लेकिन आज वो हाथ ठंडा है, मुकम्मल साकत। शाहवीर के आंसू गिरते जाते हैं, उसके अल्फाज टूटते हैं। वो बार बार यही कहता है, ओ माँ, एक बार तो मुझे बुला लेती, एक बार। लेकिन माँ खामोश है, बहुत खामोश। इस खामोशी में वो शोर है जो शाहवीर सारी जिंदगी नहीं भुला पाएगा। उसके दिल में पछतावे की वो आग जलती है जिसका धुआं बरसों आंखों में रहेगा। घर वाले उसे देखते हैं मगर उसे कोई इल्जाम नहीं देते, क्योंकि माँ के चले जाने के बाद सब जानते हैं कि इस गम का बोझ वो खुद ही उठाएगा। उसकी बीवी और सास पास खड़ी हैं, मगर शाहवीर पहली बार उन दोनों से दूर खड़ा दिखाई देता है। उसे एहसास हो रहा है कि असल मोहब्बत वो थी जिसे वो नजरअंदाज कर बैठा था। राहीम, मोहब्बत, हिम्मत और खानदान का दबाव। राहीम इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल मकाम पर खड़ा है। घर में माँ की मौत के बाद हर शख्स जज्बाती है। ऐसे माहौल में उसकी शादी की ख्वाहिश मज़ीद पेचीदा हो जाती है। वो अपने कमरे में बैठा होता है, आंखें बंद मगर चेहरे पर तूफान लिखा हुआ। मुस्कान के साथ किए गए वादे, ईमान के कहे हुए अल्फाज और घर वालों के खदशात सब एक साथ उसे घेर लेते हैं। वो सोचता है, क्या मैं ऐसे वक्त में रिश्ता भेजने की बात कर सकता हूँ, या मुझे कुछ दिन रखना चाहिए? लेकिन अगर रख गया तो कहीं देर न हो जाए। ये कश्मकश उसे रात भर सोने नहीं देती। सुबह वो बाप के पास जाता है जो चुपचाप घर के सहन में बैठे हैं। वो आहिस्ता से बैठकर कहता है, अबा, मैं अभी भी वही फैसला चाहता हूँ, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। बाप उसे देखकर सिर हिलाते हैं। या बेटा, सच्चे फैसले वक्त के महताज नहीं होते। हम माँ की फौतगी के शौक के बाद बैठकर बात करेंगे। इस वक्त तुमने सब्र करना है पा। राहीम इस जवाब पर मुतमईन भी होता है और बेचैन भी। आने वाली अक़सात में कहानी का तनाव मजीद बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर किरदार अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से लौट कर जाना आसान नहीं। आलमीर के दिल में जो आग सुलग रही थी वो अब शोलों में बदलने वाली है। अपने ससुर के हाथों अपनी मर्दांगी पर लगा धब्बा उसे अंदर तक हिलाकर रख देगा। वो लम्हा जब इसका ससुर तंजिया अंदाज मैं कहता है कि मैं तुम्हें भी बिठाकर खुला सकता हूँ, आलमीर के गुरूर की आखिरी दीवार भी टूट जाएगी। उसे यह बात सिर्फ एक तौहीन नहीं लगेगी, बल्कि ऐसे जख्म की तरह महसूस होगी जो सिर्फ एक मर्द ही महसूस कर सकता है। यही वजह है कि वो अपना कारोबार छोड़कर घर वापस आने का फैसला करेगा, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि इज्जत दौलत से बढ़कर है, और यह इज्जत उसके अपने ही घर में बिखरी पड़ी है। बस उसे देखने के लिए आंख चाहिए थी। दूसरी जानिब शाहवीर की जिंदगी जैसे किसी पटड़ी से उतर गई है। वही अपने ही वालदेन के दुख, तकलीफ और तन्हाई को नजर अंदाज करता हुआ सिर्फ अपनी सास की खदमत में मसरूफ है। उसकी ये हद से बढ़ती हुई तोजा घर में एक नई बेचैनी पैदा करेगी,
उसके माँ बाप कई बार उसे अपना दर्द सिनाने की कोशिश करेंगे, मगर शाहवीर जैसे उनकी आवाज सुनने से पहले ही कानों में रोई ठोनस लेता हो, वो अपनी सास को डॉक्टर्स के पास ले जाता है, उनके टेस्ट करवाता है और उनकी हर बात पर लबीक कहता है, जबकि उसकी अपनी माँ उसके सामने तकलीफ में कराह रही होगी। यही बेअसी अचानक एक बड़े हादसे की सूरत अख्तियार कर सकती है, जिसके कवी अमकानात यही हैं कि घर की माँ शदीद बीमारी का शिकार होकर जिंदगी और मौत की किशमकश में चली जाए। ये वो वाकया होगा जो इस घर के तीनों भाइयों के दिलों को पहली बार झंझोड़ कर रख देगा। इधर महक की किनी किरणी दुश्मनी भी थमने का नाम नहीं ले रही। वो रहीम और मुस्कान को एक साथ देखकर जैसे आग बगोला हो जाती है। उसे महसूस होता है कि रहीम की मोहब्बत इसके हाथ से निकल कर किसी और के पास जा रही है, और ये सोच उसे अंदर से खाए जा रही है। जब ईमान मुस्कान को मशूरा देती है कि अगर रहीम सच में तुमसे मोहब्बत करता है तो उसे कहो कि घर वालों के पास रिश्ता लेकर आए, तो ये बात पूरी कहानी का रख बदल देती है। रहीम पहली बार हिम्मत करके अपने घर में अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगा। ये ऐलान न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरे खानदान में भूनचाल ला देगा। लेकिन महक वो चुप नहीं बैठेगी। वो रहीम के सामने खड़ी होकर साफ कह देगी कि मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। उसकी इज्जत, उसकी ये जुलन आने वाले वाकयात को और भी संगीन बना देगी। कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां मोहब्बत, अना, नफरत और पछतावे सब एक दूसरे से टकरा कर बड़ी तबाही का सबब बनेंगे। कहानी का दबाव इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां हर किरदार के फैसले न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बल्कि पूरे खानदान की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। अलमेर के दिल में जो चिंगारी उसके ससुर के अल्फाज से भड़की है, अब वो भड़कता हुआ अलाव बनने को है। अलमेर के अंदर कई दिनों से ये एहसास बढ़ रहा था कि वो इस रिश्ते में सिर्फ एक मेहमान बनकर रह गया है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वक़ात नहीं। मगर जब उसका ससुर सबके सामने उसे यूं बेइज्जत करता है और कहता है कि तुम भी बैठी बटाई रोटी खा सकते हो, तो वो लम्हा अलमीर के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता। उसकी आंखों में जैसे धुंध छा जाती है, दिल में बेबसी और गुस्से का ऐसा तूफान उठता है कि वो इसी वक्त फैसला करता है कि अब वो दूसरों की छतरी के नीचे नहीं जिएगा। उसके दिल में पहली बार अपने माँ बाप की कदर का एहसास फिर से जागना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां कम उस कम उसे इज्जत मिलेगी, चाहे कुछ ना हो मगर अपनापन जरूर होगा। इधर शाहवीर अपनी दुनिया में इस कदर गुम हो चुका है कि उसे अपने घर पर टूटती हुई क़यामत का अंदाजा भी नहीं। एक तरफ उसकी माँ बढ़ती हुई बेचैनी और बोझ सहते सहते थक गई है, मगर वो बेटा जिसके सपनों और सामने की दीवारों पर उसकी दुआओं के निशान थे, वही बेटा आज उसके सामने बेखबर खड़ा है। शाहवीर की अपनी सास के लिए ज़रूरत से बढ़ कर फिक्र हर किसी को खटकने लगी है। डॉक्टर के क्लिंक, रिपोर्टें, दवाइयाँ, इनकी मामूली खांसी पर भी इतनी तवज्जो जैसे दुनिया इन पर ख़त्म होती हो। उसकी माँ और बाप इस सारी सूरत को रोते हुए, टोटते हुए मगर चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी कोई बात शाहवीर के दिल में अपनी ही माँ के खिलाफ नफरत न पैदा कर दे। लेकिन किस्मत को कोई खामोशी ज़्यादा देर कबूल नहीं। जल्द ही वो लम्हा आने वाला है जब इस घर की माँ शदीद तकलीफ के बाद बेहोश होकर गिर पड़ेगी और पूरा घर हल कर रह जाएगा। यही हादसा शाहवीर को जगाने की आखिरी सदा होगा। रहीम, मुस्कान और महक का मामला भी अपने नुक्ता अरोज पर पहुंच चुका है। मुस्कान की आंखों में जो खौफ छिपा है वो ये कि कहीं उसकी जिंदगी दोबारा किसी टूटे हुए ख्वाब का शिकार ना बन जाए। ईमान ने उसे एक आखिरी उम्मीद दी है कि अगर रहीम सच में उससे मोहब्बत करता है तो रिश्ता लाए। ये एक ऐसी शर्त है जिसने रहीम के सामने एक बड़ा इम्तिहान रख दिया है। रहीम पहली बार घर वालों के सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी की ख्वाहिश बयान करेगा, मगर उसे अंदाजा नहीं
कि ये कदम उसके घर में जलजला ले आएगा। महक के लिए ये बात किसी क़ियामत से कम नहीं। उसकी दुनिया जैसे एक झटके से गलने लगती है। वो रहीम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, यहाँ तक कि जज्बात में बहकर वो ऐसी सख्त बातें भी कह देगी जिनकी गूंज आने वाले कई दिन तक रहेगी। महक की ज़द, रहीम की हिम्मत, मुस्कान का डर और ईमान की नसीहत सब मिलकर कहानी को एक ऐसे धार पर ले आए हैं जहां किसी भी वक्त कोई भी कदम पूरी इमारत को गिरने पर मजबूर कर सकता है। बहुत जल्द उस कहानी में वो धमाकाखेज मोड़ आएगा जिसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया होगा। मेरे का दिल आजकल टोट-फोट और मायूसी के दरमियान झोल रहा है। वो आउटलेट पर काम के दौरान महसूस कर रहा है कि सब कुछ उसके काबू से बाहर हो गया है। उसका ससुर जब सख्त लहजे में उसे कहता है कि अगर तुम ये सब नहीं संभाल सकते तो छोड़ दो, मैं तुम्हें भी बैठाकर खुला सकता हूं, तो ये जुमला अलमीर के गुरूर पर एक ऐसा वार है जो इसे अंदर से जला देता है। वो लम्हा न सिर्फ तौहीन आमिज है बल्कि एक ऐसी हकीकत भी दिखाता है जिसे अलमीर बरसों से नजरअंदाज कर रहा था। इज्जत और वक़ार दौलत या ताकत से नहीं बल्कि अपने रिश्तों और अपने घर से आती है। अलमीर की आंखें नम हैं, दिल भारी है, मगर उसके कदम अब वापस अपने माँ बाप के घर की तरफ बढ़ते हैं। वो जान चुका है कि हकीकी सुकून और इज्जत वहीं मिलेगी और शायद ये वापसी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सब कब न जाए। वर्ल्ड शेरपूस शाहवेर ज़मीर की नींद और सदमे की हकीकत है। शाहवेर की कहानी एक और रख अख्तियार कर चुकी है। वो अपनी माँ के दुख, घर की बगड़ती सोरथाल और बहनों के खौफ को नजरअंदाज करते हुए अपनी सास के लिए इतना फिक्रमंद है कि घर के बाकी अफराद हैरान हैं। वो अस्पताल जाता है, टेस्ट करवाता है, हर बात में फौरन लबयक कहता है, जबकि उसकी अपनी माँ अंदर से टूट रही होती है। उसे अंदाजा नहीं कि उसकी ये हद से बढ़ती तोजा किस तरह घर में बेचैनी और दर्द बढ़ा रही है। लेकिन तकदीर खामोश नहीं रहती और जल्द ही वो लम्हे आने वाला है जब माँ की तबीयत शदीद खराब हो जाएगी और पूरा घर गम की लपेट में आ जाएगा। शाहवीर के लिए ये सदमा न सिर्फ जज्बाती बल्कि जिंदगी बदल देने वाला होगा, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होगा कि वालिदैन की मोहब्बत और कुर्बत सबसे बड़ी नेमत है जिसका नुकसान कभी पूरा नहीं होता। रर्ड व रहीम और मुस्कान, मोहब्बत का इम्तिहान और खानदानी दबाव। रहीम की जिंदगी में भी कई पेचीदगियां हैं। ईमान की नसीहत कि अगर वो सच में मोहब्बत करता है तो रिश्ता भेजे उसके दिल में हिम्मत पैदा करती है, मगर वो जानता है कि ये कदम आसान नहीं। घर का माहौल अभी भी माँ की वफात के गम में डूबा हुआ है और महक की दुश्मनी एक और खतरा पैदा कर रही है। रहीम पहली बार बाप के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर उसे अंदाजा नहीं कि ये ऐलान महक के लिए किसी आग से कम नहीं। महक के अंदर हसद, नफरत और ज़द की ऐसी आग भड़क जाती है जो आने वाले दिनों में पूरे खानदान को लपेट में ले सकती है। पुनसठ महक, नफरत, हसद और साजिशें। महक उस वक्त पूरी कहानी की सबसे बड़ी मुतहर्रिक कुव्वत बन गई है। वो मुस्कान की मौजूदगी और रहीम की मोहब्बत को अपने हक पर हमला समझती है। उसकी नफरत और जिद हद से बढ़ चुकी है। वो खुले अल्फाज में कहती है, मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। ये जुमला न सिर्फ घर में एक जलजला पैदा करेगा बल्कि मुस्तकबल में आने वाले कई सानिहात की बुनियाद रखेगा। महक की ज़द और साजिशें दास्तान को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज बनाती हैं, क्योंकि अब कोई भी किरदार महफूज नहीं रहा। कहानी का मजमूई माहौल। अब कहानी एक निक्ते पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी अंतहा पर खड़ा है। अलमीर वापस अपने माँ बाप के घर लौट रहा है, इज्जत और सुकून की तलाश में। शाहवीर अपनी बेहसी के सबब शदीद सदमे का शिकार होगा। रहीम और मुस्कान की मोहब्बत इम्तिहान में है और महक हर लम्हे उसे तबाह करने के लिए तैयार है। घर में हर रिश्ता आजमाइश की आग में जल रहा है। आलमीर के अंदर एक तूफान सा चल रहा है। आउटलेट पर काम के दौरान उसे एहसास होता है कि वो जो अपने गुरूर की वजह से खुद को दूसरों से बुलंद समझता था, वो हकीकत में कितना छोटा और कमजोर है। जब उसका ससुर उसे तंज़िया अंदाज में कहता है, तुमसे ये सब नहीं हो रहा, छोड़ दो, मैं तुम्हें भी बेटी की तरह बैठाकर खुला सकता हूँ, तो ये लफ्ज़ न सिर्फ अलमीर के गुरूर पर जख्म लगाते हैं बल्कि उसके दिल में देरी ना एहसास कमी को भी जगा देते हैं।
अलमिर के जहन में गुजरी हुई हर गलती और हर जद एक बार फिर टकराने लगती है। उस लम्हे वो पहली बार हकीकी एहसास से वाकिफ होता है कि इज्जत और वक़ार सिर्फ दौलत या ताकत से नहीं आते, बल्कि ख़ानदान व दीन और घर की मोहब्बत से पैदा होते हैं। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने वालिदैन के घर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अब उसे वही सुकून और एहतराम चाहिए जो बाहर की दुनिया में कभी हासिल नहीं हुआ। शाहवीर अंधापन, गफलत और सदमे की हकीकत में शाहवीर की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर है जहां वो घर के बाकी अफराद से जुदा हो चुका है। वो माँ अपनी सास के लिए इतना फिक्रमंद है कि माँ बाप और बहनों की तकलीफ उसके लिए नज़रअंदाज हो गई है। घर में बढ़ती हुई बेचैनी और माँ की तबीयत की खराबियां उसके कानों से ओझल हैं। शाहवीर अस्पताल में सास की देखभाल, टेस्ट करवाने और हर छोटी बीमारी पर फौरी रद्द-ए-अमल देने में मसरूफ है, जबकि उसकी माँ अंदर से टूट रही होती है। तकदीर खामोश नहीं रहती और जल्द ही माँ की शदीद बीमारी या मौत पूरे घर को हिलाकर रख देगी। शाहवीर के लिए यह सदमा इतना शदीद होगा कि उसका दिल और ज़मीर एक साथ टूट जाएगा और उसे अपनी गलतियों का पहला हकीकी एहसास होगा। राहीम और मुस्कान, मोहब्बत, इम्तिहान और ख़ानदानी रुकावटें। राहीम और मुस्कान की मोहब्बत भी अब शदीद दबाव का शिकार है। ईमान की नसीहत की अगर रहीम वाकई मोहब्बत करता है तो रिश्ता भेजे। एक इम्तिहान की सूरत अख्तियार कर चुकी है। रहीम पहली बार अपने घर में खड़ा होकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं कि उसके ये अल्फाज महक के लिए आग के शौले की तरह होंगे। महक की दुश्मनी, हसद और जिद पूरे घर में भूंचाल पैदा करने वाली है। मुस्कान खौफ और परेशानी में घिरी हुई है, लेकिन दिल की सच्चाई और रहीम की मोहब्बत से हौसला देती है कि वो इस आजमाइश का सामना करे। महक साजिशों की आग और नफरत का तूफान रुस। महक इस वक्त पूरे खानदान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके दिल में मुस्कान के लिए नफरत और रहीम पर कब्जे का जुनून इतना बढ़ चुका है कि वो खुले अल्फाज में कहती है, मैं तुम्हारी शादी इस लड़की से कभी नहीं होने दूंगी। यह ऐलान सिर्फ एक टकराव नहीं, बल्कि पूरे घर के जज्बाती तवाजुन को हिला देने वाला धमाका है। महक की इज्जत, हसद और साजिशें आने वाले मनाजर में कई राज, झूठ और धोखाधड़ी की बुनियाद रखेंगी, जो हर किरदार की जिंदगी में तब्दीली लाकर रखेंगी। वार्ड ओवर कहानी का मजमूई मंजरनामा है। अब कहानी एक ऐसे निक्ते पर पहुंच चुकी है जहां अलमीर वापस अपने वालिदैन के घर इज्जत और सुकून तलाश करने आ रहा है। शाहवीर अपनी बेहसी और गलत तरजीहात की वजह से शदीद सदमे का सामना करेगा। रहीम और मुस्कान की मोहब्बत इम्तिहान में है और महक हर लम्हे उसे तबाह करने के लिए तैयार है। घर में हर रिश्ता टूटने या जड़ने की कशमकश में है। कहानी के अगले मनाजर शदीद जज्बात, साजिशें, धोखाधड़ी और दिलों के टूटने के लम्हात लेकर आएंगे, जो नाजरीन के लिए अंतहाई सनसनीखेज और जज़्बाती होंगे।